اکثر ہم لوگ جب کوئی عمل کرتے ہیں نا، کیونکہ اکثر ہم یہی تو پڑھتے ہیں کہ عمل کرو عمل کرو، عمل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا اور عمل ہی دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایسی حدیث جو ہوتی ہے نا، وہ ہمیں بہت موٹیویٹ کرتی ہے کہ مسلم کی حدیث ہے 1017، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، کوئی اچھا کام کیا، وہ کرنے کے بعد تو ایک ہی بندہ تھا نا، بھول گیا اس کے بعد، لیکن جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، جتنے لوگ وہ کام کریں گے، اس کا ثواب اس پہلے بندے کو بھی جاتا رہے گا، اور دوسرے لوگ جو کرے ہوں گے ان کے عمل میں کوئی، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا، آپ کوشش جاری رکھیں، موٹیویٹ کرتے رہے لوگوں کو۔ میں اکثر آپ کو کہتی ہوں نا کہ جب آپ لوگ کلاس لیتے ہو، لائیو کلاس جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو، اس کو شیئر کر دیا کرو، جس کو کم از کم آپ 2-3 لوگوں کو شیئر کر دو۔ یو نیور نو کہ کس کو ایک دم سے کوئی چیز کلک کر جائے اور اس کی زندگی پہ قرآن کھل جائے۔ آپ نے تو بس ایک کلک ہی کیا تھا، اس کے بعد اس کو اچھا لگا تو اس نے جو عمل کیے اور اس کی وجہ سے اس کے خاندان میں جو اس نے عمل کیے تھے اور اس کی وجہ سے انہوں نے وہ سیکھا یا ان کی زندگی میں جو بدلاؤ آیا، تو آپ کا تو سفر جاری ہو گیا۔ آپ کو تو عمل جو آپ نے کیا تھا اس کا اجر آپ کو ملنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جو کام کرے گی اس کو آپ کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ رائج کیا، فار ایگزامپل کوئی ایسا فیشن تھا، ہم نے سوچا کہ ہوتا ہے نا کہ دل میں آتا ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ لگوں، دوسروں سے کوئی ڈیفرنٹ چیز ایسی کروں، لیکن اگر وہ فیشن اللہ کے احکامات کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرور کرو۔ لیکن اگر آپ ایسا کوئی فیشن ایجاد کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر نہیں آتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بے حیائی کے زمرے میں رکھا ہے، تو کوئی بھی ایسا فیشن کرتے ہو، کوئی رسم و رواج، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے گھروں میں ہمارے امی ابو کے زمانے سے تھی، ہماری تو دادی بھی ایسے کرتی تھی، نانی بھی ایسے کرتی تھی، تو آپ سوچیں کہ کہاں سے وہ چلا ہوتا ہے یہ سفر جو ہے، اور پھر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بعد جتنے لوگ کریں گے۔ پھر شادی بیاہ کی رسومات، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، آپ ایک ایک رسم پہ اب آج کی کلاس کے بعد ذرا سوچئے گا کہ ہم کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، ہمارے عمل کیسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی برا عمل طریقہ رائج کیا تو اس کو اس طریقے کے رائج کرنے پر جو بھی اس پہ عمل کرے گا، ان سب کے برابر، ان سب کا گناہ اس پہلے بندے کو ہوگا، اور جو کر رہے ہوں گے نا ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے کہ وہ جو حابیل قابیل کا قتل ہم نے پڑھا تھا، سب سے پہلے تو وہی ہوا تھا دنیا میں، اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے اس کا جو کہتے ہیں نا کہ اس کی برائی جو ہے، اس کا وہ اجر تو برا بھی ہے اور اچھا بھی ملتا ہے نا، تو جو برائی میں ان کو ملے گا نا وہ ان کو بھی ملے گا، ہر ایک کا حصے میں سے ان کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ کے کام کرنا چاہیے، ایک کوئی چیز ایسی کریں کہ ہمیں یہ ہو کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کریں گے، ہمارے پوتے پوتیاں کریں گے، ان کو دیکھ کے کوئی اور لوگ کریں گے، تو اس کا گناہ جو ہے اس کا چلتا رہے گا اور اس کا گناہ ہمیں بھی ملتا رہے گا، اللہ نہ کرے۔ اچھا، ایک اور حدیث تھی کہ ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ کی اور ارشاد کیا کہ اے گروہ مہاجرین، تب ان کو باقاعدہ بلا کے کہا کہ ڈرو اس وقت سے جب تم ان باتوں میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں بھی پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اس بات پر کہ تم لوگ اس میں مبتلا ہو جاؤ کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ بے حیائی پر اتر آئیں، تو ان لوگوں میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو اس سے پہلے ان لوگوں میں نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ آج کل ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں کو وہ بیماری ہو گئی جو کہتے ہیں کہ 1% میں بھی نہیں ہے، اور وہ اس کا علاج کر رہے ہیں، بس اللہ سے دعا کرو۔ یا کبھی ابھی کورونا گزرا ہے، آج سے پہلے تو ہم لوگوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا نا، اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو اللہ ان پر باہر سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ قوموں کی بات نہ آپ سوچیں، آپ اپنے گھر کی بات سوچیں، ہماری تو دنیا ہمارا گھر ہے نا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے عہد توڑتے ہیں، اور آپ یاد کریں ہم نے عہد کیا کیا تھا، وعدہ الست کیا تھا نا، چلے ہم سوچیں کہ وہ تو ہمیں یاد نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا نا کہ یاد بھی کرایا کہ کیسے کیسے، کیونکہ یاد کرانے والے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہیں، تو پھر تو پکا عہد کیا تھا۔ اور عہد جب کیا تھا تو کیا کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور معبود جو ہے ہم کون ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔
राइट। और फिर हमने ये भी अहद किया था कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप सोचिए ज़रा कि हम क्या कर रहे हैं वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो उन लोगों को जो कोशिश कर रहे हैं, पूरे ना भी उतरे कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं ना, अल्लाह ने कोशिशें ही देखनी है। लेकिन जिनको एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अब फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, तो और जब उनके हुक्मरान, मतलब उस मुल्क के हुक्मरान किताब अल्लाह को छोड़कर फैसले करते हैं तो अल्लाह उन्हें आपस में लड़ा देते हैं, और हम आजकल देखते हैं ये। अब देखिए कि रसूल अल्लाह ने फरमाया ना कि जब किसी कौम में बेहयाई फैलती है और वो उनमें नॉर्म हो जाती है। अब देखिए बुराई जो है ना उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना फैल जाए। तो हमें क्यों लगता है कि हर तरफ बुराई है? एक तरफ तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर है और दूसरी तरफ शैतान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान को क्या कहा था? जा तू मरदूद है, तूने जो करना है कर, लेकिन मेरे मोमिन बंदों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो आज जब हम ये कहते हैं कि हर तरफ बुराई फैल गई, तो फिर क्या रीजन है? उसकी रीजन पता है क्या है? उसकी रीजन मैं और आप हैं, क्योंकि हम चुप हैं। हमें ये होता है कि हमें क्या, हम क्यों बीच में दखल दे। अब सोचिए कि आजकल किसी ने मुझे एक वीडियो छोटा सा भेजा था, एक स्कॉलर है, उनका वीडियो था जो उन्होंने एक कोई ड्रामा है बरज़ख, उसके बारे में वो बोल रहे थे, अस्तगफिरुल्लाह। और उन्होंने जो वो बता रहे थे कि उस ड्रामे में जो हराम, मतलब जो गुनाह तो आप साइड पे कर देना कि कुरान में जितने गुनाह है, अब कुरान में जितने हराम लफ्ज के हैं ना कि ये ना करो, वो सारे इतने खूबसूरत करके दिखाए जा रहे हैं। तो हम बस चुप करके बैठे हुए हैं। अगर हम ये भी कह देंगे ना कि हाँ बस ठीक है, दफा करो, ये तो ड्रामा ऐसा है, हमारी छूट नहीं होगी। अब देखिए हमारी नस्लों को किस तरह से तबाह किया जा रहा है। पहले ड्रामों में आप देखें, पहले क्या होता है, हम लोगों के घरों में ड्रामे होते हैं ना, हम सारा वक्त तो यही होता है कि आप किसी को भी, आप अपने आप को क्वेश्चन करके देख लें कि हर दर्स के बाद लोगों का क्वेश्चन होता है क्या मतलब फिर आप ड्रामा भी ना देखें। अब किसी पार्टी में आप देखें जब हम सारे बैठे होते हैं तो डिस्कशन क्या होता है, आखिर में जाके यही बात होगी कि तुमने वो ड्रामा देखा है, फलां ड्रामा तुमने देखा है, उसकी फलां किस देखी है, उसमें जो काम कर रही थी वो हीरोइन देखी है तुमने, कितनी प्यारी है, वो हीरो देखा है तुमने उसका। ये पहले वो हीरो हीरोइन को आइडियल बना के पेश करते हैं। और कसूर किसका है मुझे ये बताएं? कसूर हमारा है। हम किसी पे क्या ब्लेम करेंगे? अब देखिए मार्केट में क्या चीज बिकेगी। आप एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आप दुकान में कौन सी चीज रखना पसंद करते हैं जो अब बिकती है मार्केट में? ऐसी चीज नहीं रखेंगे जो बिकती नहीं है। ड्रामे भी वही दिखाए जाते हैं जो बिकते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। और उसके बाद आप देखें इस हद तक हम गिर जाते हैं कि इस तरह की चीजें आराम से अब दिखा, पहले वो एक आइडियल बनाते हैं, पहले हम देखते हैं कि ओ माय गॉड इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, ये तो हीरो, यू नो एवरीबॉडी वाज स्ट्रॉन्ग। इवन बड़ी उम्र की औरतें, वो छोटे छोटे जो लड़के होते हैं उनके बाद वाओ क्या वो था और क्या उसने काम किया उसके अंदर। पहले वो इस तरह के कैरेक्टर में दिखाते हैं, वो आपके दिलों के अंदर बसना शुरू होते हैं। उसके बाद फिर वो ऐसा कैरेक्टर में उसको लेके आते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर कि हाँ ठीक है वो तो मेरा फेवरेट हीरो, वो इस तरह से दिखाया जा रहा है। वो अल्लाह की हराम करदा चीजों को कितने, देखिए शैतान क्या करता है, आज की क्लास में भी हम पढ़ेंगे कि गुनाह को खूबसूरत करके दिखाता है। अगर वल्लाही मुझे ये लगता है कि कोई मुसलमान अगर है ना, कितना भी बुरा है, अगर उसको ये पता हो कि ये गुनाह है ना, वो नहीं करेगा। लेकिन शैतान उसको इतनी खूबसूरत करके दिखाता है, 100 बहाने ये करने का। ये वजह है, अगर तुम चोरी कर रहे हो तो देखो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, देखो तुमने ये काम करने हैं, कोई बात नहीं, ये तो इनके पास तो इतने पड़े हुए, अगर हम कर भी लेंगे तो क्या है। कभी हर गुनाह के पीछे इतने खूबसूरत बहाने, इतनी खूबसूरत चीजें वो आपको दिखाएगा कि आप गुनाह करने में मुलव्वस हो जाएंगे। अब देखिए शैतान वहीं हमला करता है जहां पे आपकी वीकनेस होती है। किसी की वीकनेस पैसा है तो वो उधर जाके उसको कहेगा कि लो, अगर तुमने रिश्वत नहीं ली कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात है, लेकिन फिर अगर नहीं लोगे तो तुम्हारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। कभी किसी की वीकनेस उसकी मोहब्बतें होती हैं, वो मोहब्बतों पे हमला करता है। आप देखिए कि आजकल हमने मीडिया पे हमने देखा था, रिसेंटली देखा था कि 2 भाई हैं, दोनों ही भाई इतने अच्छे काम कर रहे हैं लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा उनका नाम दोनों भाइयों का, लेकिन दोनों आपस में जब लड़ रहे हैं तो इतनी बुरी तरह से कि एक दूसरे को जलील करने पे तुल जाते हैं। ये किसके काम है? हमें समझ ही नहीं आती। आज हम
इंशाल्लाह सूरह यूसुफ में हम देखेंगे वही करैक्टर हमें नजर आएंगे कि दुश्मनी के बावजूद भी हम किस तरह से अमल कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना सकते हैं। देखिए दुनिया में आए हैं ना तो ये सारी चीजें हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि शैतान हमें कैसे कैसे बहका सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बैना बयान कर दिया कि देखो इन रास्तों पे ना जाना, देखो इन रास्तों पे ना जाना, ये तुम्हारी कमजोरियां हैं। अल्लाह ने कमजोरियां भी बता दी कि देखो तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा पैसा है। घोड़ों का जिक्र है ना, जैसे आजकल फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा घर, ये सारी चीजें, ये सारी हलाल मोहब्बतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे दिल में डाली हैं। लेकिन जब हम उन मोहब्बतों को उनकी सतह से ऊपर ले जाते हैं ना, शैतान हमला कर देते हैं। वो आपकी कमजोरी को पकड़ लेता है, उसको पता है कि ये बिक जाएगा बंदा। तो हमें कुरान क्या सिखाता है कि हमने अपनी जिंदगी को बैलेंस कैसे करना है, हम कैसे अपनी जिंदगी को लेकर चलेंगे। क्योंकि खुद कसम फिर वही बात है कि नहीं खानी चाहिए ज्यादा, लेकिन वल्लाही जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़ी बड़ी चीजें आती हैं हर इंसान की जिंदगी में, लेकिन डील करने का तरीका हमें कुरान सिखाएगा। जब हम कुरान को छोड़ के खुद से डील करने की कोशिश करते हैं ना, तो तभी एंग्जाइटी आती है, तभी डिप्रेशन भी आ जाता है, क्योंकि हमें तवक्कल करने वाले की जात पे तवक्कल नहीं रहता। तो अल्लाह करे कि हमें इस बात की समझ आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी, अगर कम से कम आप लिख के, जिसमें जो हैसियत है, जो बोल के कह सकता है बोल के बताएं कि ये ड्रामा बुरा है और इसको बंद करें ताकि हमारी नस्लें खराब ना हो। जो लिख के कर सकता है वो लिख के करे, जो कमेंट्स में लिख सकता है वो उस तरह से लिखे, ताकि लोगों को ये पता हो कि ये एक्सेप्टेंस नहीं है। हम चुप हो जाएंगे ना तो बुराइयां इसी तरह से फैलेंगी, और कल को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा हमें कि हमने बुराई देख के अपनी आंखें वो कबूतर की तरह हम बंद नहीं कर लेते कि नहीं जी वो तो वहां हो रहा है, हमारे घर की खैर है। तो जब घर में आ जाती है ना चीज, तो फिर चीखें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी निकलवाते हैं कि फिर समझ नहीं आती है बंदे को। तो आइए जनाब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। हम कर रहे हैं सूरत यूसुफ, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 77 इंशाअल्लाह। बड़े प्यारे सबक हैं आज की क्लास में भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके मानी की समझ अता करे, इसके इजाबात हमें समझा दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे खोल दे इन मानी की, वो कहते हैं ना कि डेप्थ खोल दे। आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम पढ़े थे सूरह यूसुफ में कि पहले अब ये वो दौर शुरू हो गया जब कहत का दौर था। कनान तक भी ये कहत आ गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजा। वहां से वो जब गए थे सामान लेने, तो उन्होंने कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है और हमारा एक भाई भी है, आप उसके भी हिस्से का सामान दे दें। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारा ये तरीका है कि जो आता है, जितने उसके पास ऊँट होते हैं, एक ऊँट के वजन के बराबर एक बंदे को गला दिया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो तुम अपने भाई को भी साथ लेके आना। नेक्स्ट टाइम यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे कनान, वो अपने जो उनके 10 भाई थे, बाकी जो दूसरी माँ में से थे ना, वो उनके साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, उनसे इजाज़त लेके वो अपने छोटे भाई को भी लेके आते हैं। अब जैसे ही वो लेके आते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने छोटे भाई को बता देते हैं कि ये वो यूसुफ हैं और वो उनका भाई है। और फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो उसको जब अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि उस मुल्क का कानून, मिस्र का कानून ये था कि उनके मुताबिक वो ऐसे उसको रख नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो आए थे कनान से, आए थे किसी दूसरी जगह से आए थे ना। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया कि कज़ालिका किदना ली यूसुफ, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तदबीर की यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। ये सारा प्लान जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया, और उनको किस तरह से उन्हीं से पूछा कि तुम्हारे फिर मुल्क का क्या कानून है, कि अगर कोई चोर होता है तो तुम क्या करते हो। तो जब उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क का कानून ये है कि जो चोर होता है वो उसी का गुलाम बन जाता है, वो उनके पास ही चला जाता है। तो यही चीज़ लेके अब आगे हम देखते हैं कि अब क्या हुआ था कि वो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको छोटे जो है अपने भाई बिन्यामिन को वो कैसे अपने पास रख लेते हैं। अब आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कौलू, कहा किसने, उन तमाम भाइयों ने, इन यसरिक, कि अगर इसने चोरी की है, फ़क़द सरका अखुल लहू मिन कब्ल, के इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। अब देखें कह किसको रहे हैं, उनको क्या पता था कि जिसको कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम वही हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या सबक मिलता है, हमें ये सबक मिलता है, देखें कि द मोमेंट उनको पता चलता है कि उसके सामान में से वो प्याला निकला है, तो उन्होंने फौरन ही जैसे हो गया ना कि हमारा कोई इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, कि ये तो चोर है, तो इसके भाई ने भी ऐसे चोरी की थी, हम ऐसे नहीं हैं। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल के वक्त अपने भी साथ छोड़ देते हैं।
اب ہوتا یہی بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں نا کہ خاندان میں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، سگے بہن بھائیوں میں آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہم نے کئی دفعہ سنا ہے نا. سب سے بڑی بات تو جب ماں باپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جب ورثے تقسیم ہوتا ہے وہیں پہ 99% تو وہیں پہ پرابلم آ جاتی ہے کہ بہن بھائیوں میں آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں. اور کئی دفعہ تو یہاں تک بھی سنتے ہیں کہ میں اگر مر بھی گیا تو میری قبر پہ اس کو نہیں آنا اور میرے جنازے پہ اس کو نہ لانا یا میرا منہ نہ دکھانا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے لو ونز ہی ہوتے ہیں. دیکھیں غیروں کو تو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، وہ تو صرف باتیں گوسپس کرنے میں لگے ہوتے ہیں. یہ دشمنیاں، یہ حسد، یہ ساری چیزیں اراؤنڈ ہوتی ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل. وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ہمیں اتنا ٹرسٹ، ایک ہوتا ہے نا اندھا ٹرسٹ ہونا، کہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ کس طرح سے. اگر دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھ لیں، اگر کسی کو بھی آزمانا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بھی بتایا تھا نا کہ مومن ایک بیل سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا. وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی اس بات کی کہ اگر ایک دفعہ کسی نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد اس پہ وہ ٹرسٹ نہ وہ لیول کا کرنا. تعلقات ختم کرنے کے لیے نہیں کہا، تعلق ضرور رکھنا ہے تاکہ وہ اس کی، آپ اگر تعلق ختم ہوگا تو اس کی کریکشن کیسے کریں گے، رائٹ؟ تو کریکشن کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعلق اچھا کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے کسی طرح سے، لیکن دوبارہ سے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ کسی بھی انسان کو اگر آپ نے آزمانا ہے نا تو اس کو آپ غم میں آزما کے دیکھیں. خوشیوں میں سارے ہی ساتھ دے دیتے ہیں، ہر کوئی. اب دیکھیں دور پار کا رشتہ دار ہوتا ہے نا، کوئی ایک خاندان میں کسی کا کوئی نام ہو جاتا ہے، کوئی امیر ہو جاتا ہے، کوئی سیاست میں آ گیا یا بہت بڑا کاروبار ہو گیا یا کوئی بھی لیول پہ، تو دور کے بھی رشتہ دار پتہ کیا کہ وہ میری امی کے پھپھی کے بیٹے کا چچے کا پوتے کا پوتا میرے جاننے والے ہیں. وہ مطلب ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے. تو کیسے ریلیشن بناتے ہیں. لیکن اگر حالات خراب ہوتے ہیں نا تو پھر اپنے گھر کے فنکشن میں بھی بلانا وہ نہیں سمجھتے امپورٹنٹ. وہاں پہ آ کے دیکھیں غم میں کوئی ساتھ دے یا نہ دے. کہتے خوشیوں میں تو ہر کوئی ساتھ دے دیتا ہے، غم میں آ کے انسان کسی کا ساتھ دے یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور آ کے یہ ساری چیزیں دیکھیں ہماری زندگی میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں. اپنے گھروں میں نہیں دیکھیں گے تو اپنے فرینڈس کے گھروں میں دیکھ لیں گے، اپنے جاننے والوں میں سے دیکھ لیں گے. تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے. یہاں پہ ہمیں جو بہت بڑا سبق مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بھی کس طرح سے دھوکہ دے دیتے ہیں. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، فَأَسَرَّهَا، اور پھر چھپا لیا اس بات کو، یوسف نے فی نفسہ، اپنے جی میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور نہیں ظاہر کیا انہیں یہ ظاہر نہیں کیا. اب یہاں پہ آپ یوسف علیہ السلام کیا صبر دیکھیں. اب ذرا اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں اس جگہ پہ کہ ایک بڑا مقام ہو، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اتنا مال بھی ہے، سب کچھ کے، اور دوسری طرف جو بھائی ہیں وہ اس حال میں آئے ہیں کہ بالکل جیسے مانگ رہے ہیں آ کے کہ کسی طرح سے ہم سروائیول میں ہے، کہ مطلب کسی طرح سے ہمیں گندم یہاں سے مل جائے. اور وہاں پہ یوسف علیہ السلام ان کو یاد کرا سکتے تھے بڑے اچھے سے، تانے دے دے کہ تمہیں یاد ہے تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں تمہارا وہی بھائی ہوں، آدمی اٹھا کے آگے ہو، چلو جاؤ یہاں سے، میں نہیں تمہاری ہیلپ کرتا یا کچھ بھی نہیں. ابھی بھی بتائیں گے یوسف علیہ السلام. لیکن آپ یہاں پہ ان کا کردار دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے چھپا لی اپنے دل میں یہ بات اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور کہا کہ تم بڑے ہی برے مقام پہ ہو. ان کو نہیں کہا، اپنے جی میں کہا، اپنے دل میں کہا کہ ابھی بھی یہ ایسے ہی ہیں، ابھی بھی اخلاق کس لیول پہ ہے یہ. اور پھر خود ہی سے اپنے دل میں کہتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، کیونکہ تکلیف تو ہوتی ہے نا جب بندہ منہ کے اوپر ایسی بات کر رہا ہوتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے نہیں کیا. تو یہ جو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی ایسے کیا تھا، تو اللہ جانتا ہے. اچھا، بعض مفسرین نے یہاں پہ کہا کہ جو ان کے بھائیوں نے یہ کہا نا کہ اس کا بھائی بھی چوری اس نے بھی کی ہے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ وہ غلط بات کر رہے ہیں. تو کہتے جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کی مدر کی جب ڈیتھ ہوئی ہے، تو یہ اور ان کے چھوٹے بھائی، ان کو ان کی پھوپھی جو تھی نا انہوں نے پالا، کیونکہ گھر میں عورت نہیں تھی اس وقت. تو پھپھی کو ان سے بڑی محبت تھی. جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو اپنی بہن سے کہا کہ اب مجھے یہ واپس دے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی اس کو میرے پاس ہی رہنے دو، مجھے مطلب میں نے شروع سے اس کو پالا ہے، مجھے بڑی محبت ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ واپس چاہیے. تو کہتے کہ اس وقت کیونکہ ان کے ملک کا قانون یہی تھا کہ جو چور ہے نا اس کو اسی کے پاس رکھنا، یہ ہم دیکھ چکے نا. تو کہتے ہیں کہ ان کی پھوپھی نے ان کے سامان میں ایک بیلٹ، جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام
के ज़माने से वो फिर इस तरह से याकूब अलैहिस्सलाम को मिली थी और याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी थी और वहाँ से वो बेल्ट जो थी वो फिर नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं दी थी, वो उनकी फूफी के पास थी। तो वो बेल्ट जो है ना वो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामान में रख दी और फिर कहा कि मुझे तो वो बेल्ट नहीं मिल रही है, तो फिर जब सामान खोला था उस वक़्त भी ये हुआ था। अब ये देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कितनी मुश्किलों में, शुरू से लेके अब तक, अब देखें कि एक के बाद गम, एक के बाद एक गम। अब जैसे मैं आपको ये कहती हूँ ना कि ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुरान खुल गया या हम तस्बीहात करना शुरू हो गए, हम तहज्जुद में उठना शुरू हो गए, तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आएँगी। देखिए मुश्किलें आती हैं, नबी हैं, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, दादा भी नबी है ना? हमने पढ़ा, पर दादा भी नबी है। फिर भी कब से मुश्किलें आ रही हैं, आज़माइशें चल रही हैं, कुरान हमें क्या सिखाता है कि हमने इनको डील कैसे करना है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला को पता है कि मेरे बंदे पे जब मुश्किल आएगी ये बिखर जाएगा, इमोशनली ड्रेन हो जाएगा, तो किस तरह से उस वक़्त अल्लाह सुब्हाना ताला सब्र जो देता है बंदे को, उसके साथ-साथ अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे उसको बताते हैं कि तुमने कायम कैसे रहना है, तुम्हारे इमोशनली तुमने कैसे ठीक रहना है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आगे चल सके। अगर एक माँ है तो उसको इस लेवल पे लेके आते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला कि तुम ये देखो कि अगर तुम बिखर गई तो तुम्हारे बच्चे जो हैं जिनके पर कोई मुश्किल आई है वो बिखर जाएंगे, तो फिर सारा मामला खराब हो जाएगा। तो हर एक उनकी जगह पे कायम रखना, यही कुरान हमें सिखाता है। कुरान हमें हर जगह पे अल्लाह सुब्हाना ताला पे तवक्कल सिखाता है कि वो ज़ात है ना जिसने ठीक करना है। जब तुम उस पे तवक्कल करोगे, जब तुम्हें ये पता होगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे सुन रहा है, मुझे कोई भी ना सुने मेरा रब मुझे सुन रहा है, तो फिर उसी के आगे तुम हाजत बयान करते हो, फिर वही अलका करेगा दिल में, वही तसल्लियां देगा कि तुम्हें कोई बात नहीं, इन्ना माल उसरी युसरा, कि आसानी आएगी, तंगी के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आसानी ना आए, गुजर जाएगा ये वक्त भी और फिर आसानी का वक्त भी आ जाएगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें यही बताते हैं कि जब आसानी का वक्त आएगा तो अल्लाह की याद ना छोड़ना, क्योंकि जब जो आसानियों में अल्लाह को याद करते हैं, मुश्किल में अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अकेला नहीं छोड़ते। ये चीजें बस हमें समझ आ जाए ना, तो इंसान हर गम आसानी से गुजार देता है। कि दुनिया की जिंदगी है कितनी, कुछ दिन की जिंदगी के पीछे इतना रोना पिटना डाल दें। हमने तो जाना है जहां पे हमेशा की जिंदगी, वहां पे इतने अजर लेके जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये मेरे रब का अगर इसमें मर्जी है तो मेरे अल्लाह जी मैं इसमें खुश हूं, अल्लाह जी मुझे इसमें से आसानी से निकाल देना। मैं इमोशनली टूट गई हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही इस वक्त कि मेरे साथ क्या हुआ। गम पे गम पड़ रहे होते हैं। आप याकूब अलैहिस्सलाम को देखें जरा, आगे इनका पूरा जो किस्सा आएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से गम के बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि गम है तो आपको कोई गम भी नहीं लग रहा। फिर तो वो कहते हैं ना, वो पाकिस्तान में बस के पीछे लिखा होता है कि अक्ल नहीं थे मौजा ही मौजा, अक्ल नहीं थे सोचा ही सोचा। फिर तो वो हाल हो जाएगा कि अक्ल नहीं थे मौजा ही मौजा, गम परेशानियां घर के आ रही, कोई बात नहीं जी मैं बड़ी खुश हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें डील करने का तरीका सिखा देते हैं। एक सहारा मिल जाता है, एक मजबूत सहारा कि जिस पे हमें ये यकीन होता है कि वही बस बदलने वाला है और कोई बदलने वाला नहीं है। और इंशाल्लाह वो मेरी बात सुना, आज नहीं तो कल ठीक हो जाना है। अब यहाँ पे क्या था कि हमने क्या पढ़ा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में छुपा ली उस बात को और कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है कि जो तुम बयान कर रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया। अब आयत नंबर 78 में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बता रहे हैं। कौलू कहा, भाइयों ने कहा, या अय्युहल अजीज, ए अजीज, इन्ना बेशक लहू इसका अबन बाप शेखुन कबीरा के बूढ़ा है, बड़ी उम्र का है। अच्छा, शेखुन कबीरा में बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि बड़ी उम्र का, और बाज ने ये कहा कि बहुत जैसे पाइस्ट है, बड़ा नेक है, क्योंकि वो नबी भी थे। तो इन्होंने ये कहा कि इसका बाप जो है ये बड़ी उम्र का है या नेक है। फखुज अहदना, तो रख ले हम में से किसी एक को मकाना हो इसकी जगह पे। अब क्या हुआ, पहले तो उन्होंने कहा कि जी इसने किया चोरी, इसका भाई भी ऐसे ही था, ये ऐसे ही है, राइट। फिर उनको ये लगा कि ये तो हमने अपने बाप से वादा करके आए थे, इसको कैसे यहाँ पे छोड़ जाएंगे, हम कैसे वापस आएंगे। वो जैसे होता है ना कि एक सेकंड थॉट एकदम से आनी शुरू हो जाती है। तो फिर उसको कहा कि इसको छोड़ दें, इसकी जगह पे हम में से किसी और को रख लें, क्योंकि हमने तो अपने बाप से वादा करके आए थे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माज़ अल्लाह, कि अल्लाह की पनाह, अन नाखुजा, कि हम पकड़े, इल्ला मगर, मम वजदना, कि जिसके पास पाया हमने, मताना अपना सामान, इंदहु पास इसके,
کہ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے، مطلب جو چور ہے بیسیکلی، اس کی جگہ پہ ہم دوسرے کو رکھ لیں، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ انا بے شک ہم اذ اللہ ظالمین، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فلم مستیئسو، پس جب وہ مایوس ہو گئے، منہ اس سے، کون؟ ان کے یوسف علیہ۔ اچھا اب یہاں پہ نا، اب یہ پورے قصے میں اگر آپ شروع میں نا وہ نام لکھتے، قالو جہاں پہ آتا ہے کہ بھائیوں نے کہا، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو وہ ساری چیزوں میں نا آپ کو یہ سٹوری بہت آسانی سے سمجھ آئے گی، کیونکہ بار بار وہ ہوتا ہے اس نے کہا، اس نے کہا، تو آپ اوپر چھوٹا سا لکھ لیا کریں۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ یوسف کو جب انہوں نے منانے کے لیے پورا ہتھیار یوز کر لیا کہ شاید کسی طرح سے وہ مان جائیں، اب یوسف علیہ السلام نے جب منع کر دیا تو خلصوا نجیہ، تو وہ انہوں نے کیا کیا، خالص وہ الگ ہو گئے اور سرگوشی کرنے لگے، کہ سائڈ پہ ہو کے سارے بھائی آپس میں پلان کرنے لگے کہ اب کیا کریں، ہم کیسے اپنے بھائی کو واپس لے کے جائیں۔ قالا، کہا، کبیرہم، ان کے بڑے نے، جو بڑا بھائی تھا نا، اب یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو جب یہ لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے پلان کیا تھا کہ اس کو قتل کر دیں، تو اس نے اس وقت یاد ہے آپ کو، ہم نے پڑھا تھا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، یوں کرتے ہیں کہ اس کو ہم کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو پھر اس کو کوئی بھی لے جائے گا، یہ قافلہ لے جائے گا، یہ ہمارے پاس سے چلا جائے گا۔ یہ وہی بھائی ہے، اس کا ڈفرنٹ نام آتا ہے، لیکن اکثر تفاسیر میں یہودا ان کا نام آتا ہے، کہتے ہیں کہ اسی پہ پھر جو ریلیجن بنا تھا اور انہوں نے اپنا نام یہودی رکھا تھا، وہ اسی بڑے بھائی کے آگے نسل میں سے چلا تھا۔ تو جو بڑے بھائی ہے نا، اس نے یہ کہا، الم تعلموا انا، کہ نہیں کیا تم جانتے کہ بے شک اباکم، کہ تمہارے باپ نے قد اخذ علیکم موثقا، تم سے لیا تھا پکا عہد من اللہ، اللہ کے نام سے۔ اب وہ کیونکہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے باپ نے پکا عہد لیا تھا کہ اس کو تم نے لے کے آنا ہے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اس سے پہلے تو تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے کر چکے ہو، کہ مطلب تم اس کو پکا عہد کیا تھا اور پھر تم نے جو کچھ کیا تھا تمہیں یاد ہے اس بات کو۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، اور اب وہ بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں تو ہرگز نہیں یہاں سے جانے والا ہوں، حتیٰ یأذن لی، یہاں تک کہ اجازت دے مجھے ابھی میرا باپ، او یحکم اللہ، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ کر دے، لی میرے لیے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب بڑے بھائی نے تو یہ صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سے نہیں جانے والا ہوں، تو میں تو جب تک میرا باپ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اور یا پھر اللہ ہی میرے فیصلہ کر دے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ختم کر دے کچھ بھی، میں نے یہاں سے نہیں جانا۔ اور اب اپنے دوسرے بھائیوں کو جو رہ گئے تھے ان کو کہتے ہیں ارجعوا الی ابیکم، کہ تم لوٹ جاؤ طرف اپنے باپ کے۔ فَقُولُوا، تو پھر کہو، یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنکا سرقہ، کہ تیرے بیٹے نے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ دیکھیں اب پورا تعلق ہی ختم کر دیا، یعنی کہ بھائی نے چوری کیا، آپ کے بیٹے نے چوری کیا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمَا شَهِدْنَا، اور نہیں ہم گواہی دے سکتے، الا مگر بما علمنا، مگر وہ جو ہمارے علم میں آیا ہے، مطلب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں، جا کے تم اب باپ کو یہ کہنا کہ ہم نے تو جو دیکھا ہے ہم وہی گواہی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کر رہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو شہیدنا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھا تھا کہ اس نے بھائی نے اس کے اندر اپنا وہ جو پیالہ تھا جو بادشاہ کا چوری ہوا تھا وہ ڈالا ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ سب کی تلاشی لی تو اس میں سے نکلا، تو ایسی گواہی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ واقعاتی گواہی ہوتی ہے۔ اور اگر ایک دیکھیں، ایک آئینی شہادت ہے اور ایک واقعاتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ جب یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے اس نے کمرے میں بند کر دیا تھا، جب وہ باہر نکلے تو عزیز مصر باہر کھڑا ہوا تھا، تو گھر کے اندر ایک آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ عورت قصوروار ہے۔ وہ والی ہم نے پڑھی تھی نا، وہ سارا قصہ پڑھا تھا۔ تو وہ پھر جو عزیز مصر تھا اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ تم غلطی پہ ہو۔ تو وہی بات، وہ مطلب اس نے آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اسی چیز کو جو واقعاتی شہادت ہے نا، اسی بات کو کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، دونوں کے پاس چھوٹے سے، مطلب جیسے ہوتا ہے نا نیو بورن بچے، اس طرح سے تھے۔ تو وہ کہیں جا رہی تھی راستے میں، تو اس زمانے میں ہوتا تھا نا کہ جنگلوں میں سے گزرنا پڑتا تھا یا اس طرح سے، تو کہتے ہیں کہ وہ دونوں بچے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو ایک بھیڑیا آیا تو وہ ایک بچے کو اٹھا کے لے گیا، مطلب اس نے اس کو کھا لیا یا لے گیا اٹھا کے۔ اب دونوں عورتوں کی لڑائی ہونا شروع ہو گئی، دونوں نے یہ کہا کہ نہیں، جو بچہ ہے نا یہ میرا بچہ ہے۔
अब ये बात लेके वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गई। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो एक औरत है, जो बड़ी वाली औरत थी, वो रो रही है और वो कह रही है कि मेरा बच्चा था, दूसरी भी कह रही है, लेकिन उन्होंने फैसला बड़ी के हक में दे दिया कि ये बच्चा जो है ये इसका बच्चा है। अब वो फैसला जब हज़रत कौन थे उनके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब ये वाक़या वो गई उनके पास कि इस तरह से है कि ये वो, क्योंकि उनको ये मान नहीं रही थी, वो जो जिसका मतलब बच्चा था उनको उसको सब्र नहीं आ रहा था, वो उनके पास गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ठीक है, पूरा किस्सा सुना तो उन्होंने अपने गुलाम को कहा कि एक चाकू लेके आओ। वो जब चाकू लेके आया तो उसने कहा कि इस बच्चे के 2 हिस्से कर दो, एक हिस्सा एक को दे दो, एक हिस्सा एक को दे दो। कहते द मोमेंट ये बात सुनी ना, तो वो औरत जिसका वो बच्चा था वो एकदम से चीखना शुरू हो गई कि नहीं 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 नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, आप ये बच्चा इसको दे दे, आप ये बच्चा इसको दे दे, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सॉरी कौन से सलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बच्चा जो है वो उस औरत को, जो दूसरी वाली औरत थी, उन्होंने कहा कि ये बच्चा इसका है, क्योंकि जो तड़प के साथ वो रोई है ये एक माँ ही ऐसे कर सकती है। और ये कौन सी गवाही थी, ये आईनी नहीं थी, ये शहादत थी, इसको कहते हैं कि वाकयाती शहादत जो होता है ना, उस तरह से था। एक और बल्कि हदीस में था, मैं आपको चलिए ये मैं बाद में आपको, फिर लंबा हो जाएगा क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि हम काफ़ी आयात इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा जी अब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं कि उन भाइयों ने ये कहा, बड़े भाई ने कहा कि अच्छा तुम जाओ और बाप को ऐसे कहना और उनको कहना वमा कुन्ना लिल गायबी हाफिजीन, और नहीं थे हम गायब पे कोई हाफिज नहीं थे, मतलब हमें गायब का इल्म नहीं था। इसकी 2 तरह से तफसीर आती हैं कि अगर नंबर 1 ये कि उन्होंने कहा कि अगर हमें क्या पता था, हम गायब को नहीं जानते, अगर हमें पता होता कि ये चोर है तो हम कभी इसको साथ ना लेके जाते, ना ही हम आपके साथ कस्में खाते कि हम इसको वापस लेके जाएंगे, तो हम तो नहीं जानते। दूसरा इसके बारे में तफसीर में क्या आता है कि जब इन्होंने अपने बाप को ये सारा किस्सा बताया तो बाप ने कहा कि उनको क्या पता था कि तुम्हारे मुल्क का ये कानून है कि उसकी जगह पे, जो चोर है उसकी जगह पे वही बंदे को रख लेते हैं। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने पहले प्लान किया है और तुम लोग इस तरह से कर रहे हो। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता था, हम गायब नहीं जानते। ये बात हमने जब काफिले वाले आए थे बात करने के तुम चोर हो, तो हमने उस वक्त कही थी, हमें क्या पता था कि इसके सामान से ये चीज जो प्याला वो निकल आएगा। अब आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये भाइयों के साथ जब ऐसे बात हो रही है तो वो अब याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं आ रहा, ठीक है, तो अब वो उनको यकीन दिलाने के लिए कह रहे हैं वसलिल करियता, तो आप पूछ ले इस बस्ती वालों से अल्लती कुन्ना फीहा, के जिसमें हम थे, जहां पे ये वाकया हुआ था उस बस्ती वालों से पूछ ले क्योंकि वो भी उधर थे। वल ईरल्लती अकबलना फीहा, या फिर इस काफिले से पूछ ले जिसके साथ हम आए हैं, उनके सामने ही भी यही वाकया हुआ था। व इन्ना लसादिकून, कि हम तो सच्चे हैं। काला, कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा। अब देखें ये किस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो बार बार हम पढ़ रहे हैं, इतने सबक हैं, इसमें हम बार बार एक ही बात पढ़ेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि वो किस तरह से मोहसिनीन का दर्जे पे थे और क्यों थे वो, और उनमें क्या ऐसी खूबियां थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतनी पसंद थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतने अजर फिर अता किए थे। यही वो कहते हैं ना कि कुरान में आप वो चाबियां जैसे होती है ना कि आप दरवाजे खोलते हैं, आपको समझ आनी शुरू होती है, यही वो चीजें हैं जो हमें समझ आती हैं तो हमारी जिंदगियों में आसानियां हो जाती हैं। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कौला कहा बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरा, कि बल्कि अच्छा कर दिखाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्स ने ये अमर, क्योंकि उनको यकीन नहीं आ रहा था। तो इसमें हमारे लिए क्या सबक मिलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे नफ्स ने ये बुराई जो तुमने की है, या तुमने उसको छोड़ आए हो, या कहाँ पे तुमने क्या किया है, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें अच्छा करके दिखा दिया उसको और तुमने ये कर लिया। अब यहाँ पे देखिए वो ये नहीं कह रहे। अब हमने क्या सीखना है, कभी बच्चों से गलती होती है ना तो हम एकदम होता है ना कि मेरी तो आदत है, मैं तो सीधी बात करती हूँ कि अगले की बेशक सर से पांव तक आग लग जाए और हम बड़े आराम से कहते हैं मुझे तो आदत है, मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ, मैं कौन सी झूठ कह रही हूँ। अब यहाँ पे देखें याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे नफ्सों ने उसको अच्छा करके दिखाया इसलिए तुमने ये बुराई की, वरना तुम ये ना करते। तो हमें इससे सबक मिलता है कि वही जो मैंने आपको पहले हदीस सुनाई थी शुरू में कि हमारे नफ्स शैतान कैसे खूबसूरत करके हमें चीजें दिखाता है कि हम उसमें मुलव्वस हो जाते हैं, और यही चीज हमें कुरान सिखाता है कि उसकी बातों में नहीं आना,
رائٹ. تو یہاں پہ اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں فرما رہے ہیں کہ پھر یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو یہ کہا کہ تمہارے نفس نے تمہیں خوبصورت کر کے وہ چیز دکھا دی ہے جو گناہ تم کر کے آئے ہو، فصبر جمیل، تو اب صبر ہی اچھا ہے. اب دیکھیے صبر کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کا صبر آپ دیکھیں، یوسف علیہ السلام. اب دیکھیے کوئی بچہ اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جائے نا تو صبر آ جاتا ہے، گم ہو جائے نا تو صبر نہیں آتا. بڑا مشکل ہے یہ. میں نے ایک دیکھی تھی ہمارے ڈسکا میں ایک عورت تھی، ان کا بچہ گم ہو گیا تھا. وہ بزنس کے لیے کہیں گیا تھا، کوئی سامان لے کے نہیں جیسے جاتے ہیں، وہ بچہ واپس ہی نہیں آیا. وہ عورت کو میں نے مرتے دم تک دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں وہ انتظار نہیں ہوتا، جیسے وہ ہمیشہ ہی کوشش کرتی رہی کہ شاید مطلب وہاں سے پتہ کروں، وہاں سے پتہ کروں. کتنے سالوں وہ فوت ہو گئی، وہ بچہ نہیں واپس آیا. اب وہ پھر اپنے آپ کو تسلیاں بھی دیتی تھی کہ بیچ میں وہ سیلاب آیا تھا فلاں ایریا میں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اس ایریا سے گزرا ہو تو اس طرح سے ہو گیا. مطلب وہ جب بھی بات کرتی تھی وہ روتی بھی تھی، اور عجیب ان کی حالت تھی کہ صبر ہی نہیں آتا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہو جاتا ہے جب کلوئر مل جاتا ہے بندے کو. جو بھی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ ڈن ہے، مطلب اس کے بعد پھر روتا ہے، یاد آتی ہے، لیکن کلوئر مل جاتا ہے نا. لیکن جب گم ہو جائے نا یہ بڑی تو بس دفعہ اللہ نہ کرے اللہ کسی کو ایسی آزمائش میں ڈالے. اور پتہ ہے جب وہ فوت ہو گئی نا تو اس کے بعد مجھے کسی سے میری بات ہو رہی تھی کیونکہ ڈسکا میں تھی وہ، تو مجھے کسی نے بتایا کہ انہی کی ایک اور بیٹی اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. وہ کہیں جا سے واپس آ رہی تھیں اور راستے میں پتہ نہیں کہاں پہ گم ہو گئیں، کیا ہوا وہ جو بھی پتہ نہیں. اٹ واز اے لانگ اسٹوری. لیکن میرا بتانے کا یہاں پہ مقصد ہے کہ دیکھیں ایسی ایسی آزمائشیں پڑتی ہیں لوگوں پہ کہ اس میں کیا قصور ہوتا ہے والی بات ہے نا، کہ کیا بس اللہ ہی ہے کہ جو ہم سب کو بچائے رکھے. میں کہتی ہوں کہ اولاد کی آزمائش جو ہے نا اللہ کسی کافر پہ بھی کسی پہ کوئی بھی بندے پہ نہ ڈالے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اولاد اور پیسہ جو ہے نا یہ بڑی بری آزمائش ہے. کیونکہ پہلے تو دیکھیں ہم ایک انسان ہوتے ہیں نا، بیماری ہے، پریشانی ہے، ایک انسان کاٹ لیتا ہے. لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے یا ایک آدمی باپ بنتا ہے، پھر اس کے ساتھ اور رشتے آتے ہیں. اگر میں عورت ہی کی بات کرتی ہوں، جیسے کہ خامند ہے، پھر اس کے بعد اولاد ہے. آپ سوچیں کہ اگر فار ایگزامپل 3 بھی بچے ہیں آپ کے، 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں، اس کے ساتھ اپنا دکھ بھول جاتا ہے. اگر بچوں کو کہتے ہیں نا کانٹا بھی چبھتا ہے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، صبر کے وہ لیول بھی ہم نے سیکھ لیے کہ اچھا جی صبر کیسے کرنا ہے، اور ہم نے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو پھر مصروف کر دینا ہے. لیکن وہ جو دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے اللہ اکبر، کہ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے، کہ پھر وہ تہجدوں میں اٹھتی ہے ماں، پھر وہ روتی ہے، پھر اللہ کے سامنے کس طرح سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتی ہے. وہ ایک عورت، میں کہتی ہوں جب شادی ہوتی ہے نا، میں اس اینگل سے اس بچی کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے سفر پہ جا رہی ہے بچی. اس کو ابھی تو جیسے میں درس بھی دینے کبھی جاتی ہوں اپنے فرینڈس کے، تو میں کہتی ہوں ابھی تو وہ خوشیوں میں ہے نا کہ اب شادی ہو رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن کیونکہ ہم لوگ تو گزرے ہوتے ہیں نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد بھی دینی ہے، پھر اب غمی خوشی ساتھ چلنا ہے. تو یہ ایک بچی جو ہے نا وہ پہاڑ جتنی صبر لے کے زندگی میں چلے گی. اور جو عقل مند عورتیں ہوتی ہیں نا وہ پھر کیسے اپنے خاندان کو سنبھال کے، بچوں کو سنبھال کے، اندر سے ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ غم سے، لیکن بچوں کے لیے پہاڑ بن کے سامنے آ جاتی ہیں کہ بچے فکر نہیں کرو میں ہوں سامنے نا. اسی طرح سے باپ بھی بیسیکلی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ وہ حوصلے بھی، کیونکہ رسول اللہ نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ صبر کی دعا نہ مانگا کرو، عافیت کی دعا مانگا کرو. کیونکہ صبر جو ہے نا وہ تو مشکلوں کے لیے آتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عام دن میں جب ابھی مشکل ہی نہیں آئی تو دعائیں مانگ لو یا اللہ مجھے صبر کی توفیق دینا، نہیں، یہ مانگا کرو کہ یا اللہ عافیت رکھنا. صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہے نا اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، بڑی پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. پوری دعا اتنی پیاری ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس کو اگر آپ پڑھتے ہی ہوں گے آف کورس مجھے یقین ہے، لیکن اگر نہیں پڑھتے نا تو آج پڑھ کے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھنا کہ اللہ میری کمزوریوں کو چھپا لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عافیت دے. ساری ایک لفظ اس کا اتنا خوبصورت ہے کہ وہ صبح شام پڑھنے کی دعاؤں میں ہے. اس کے علاوہ دیکھیں
कि अब यहाँ पे सब्र की जब बात हो रही है ना, तो हम सीख रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को कौन-सा सब्र पसंद है। तो इमाम गज़ाली, मैं उनकी बुक पढ़ी थी और सब्र का चैप्टर ही बेसिकली, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से समझाया और ऑनेस्टली मैं ये सोच रही थी, ओह माय गॉड! अच्छा, मैंने इस एंगल से इस चीज़ को नहीं पहले देखा था। कहते हैं कि अल्लाह के लिए शिकवा और शिकायत करना हराम है। अल्लाह के लिए शिकवा शिकायत करना हराम है। जैसे वो बंदा कहता है ना, आपने सुना होगा कि किसी पे इतने गम होते हैं कि कभी अल्लाह ना करे कि एक हस्बैंड की डेथ हो गई, तो फिर बच्चे की कोई मुसीबत आ गई, तो फिर कारोबार में भी प्रॉब्लम आ गई, तो फिर ये होता है ऐसे। और कई दफ़ा हम सोचते हैं उनके मुँह से क्या निकलता है, या अल्लाह बस भी कर दो। अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं ही रह गई हूँ क्या? तो कहते हैं कि ऐसे शिकवा नहीं करना चाहिए। आई नो कि मुश्किल मुकाम पे होता है उस वक़्त बंदा, लेकिन अगर हमें पता होगा तो हमारे लफ्ज़ हमारे कंट्रोल में रह जाएँगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के लिए शिकवा और शिकायत करना हराम है। आदमी अपने मर्ज़ या मुसीबत का किसी के सामने इज़हार करता है और उसे नापसंद करता है। मतलब ये कहता है कि क्या मुसीबत है, ये बीमारी मुझे लगनी थी, तो इस तरह से, मतलब इस तरह से वो बात करता है और उसके लिए नाराज़ होता है। मतलब नाराज़गी भी वही बात हुई ना कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ है? तो उससे नापसंद करता है और उससे नाराज होता है, तो ये अल्लाह के फेल की शिकायत है, इसलिए ये हराम है। ये उनकी बुक का मैं आपको कोट कर रही हूँ। हाँ, हाँ, अगर वो अल्लाह से नाराज नहीं है, अल्लाह का शिकवा और शिकायत नहीं कर रहा, तो फिर ये हराम नहीं है। लेकिन फिर भी ये खिलाफे ऊला है। कितनी बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखें कि हमें क्या समझ आती है। देखिए, एक वो शिकायत है कि अल्लाह से शिकायत करना और एक ये है कि अल्लाह की शिकायत करना। ये फ़र्क उन्होंने बेसिकली बताया कि हम जब कभी हो कि अल्लाह से तो शिकायत होती है। अल्लाह के सामने जब हम अकेले होते हैं, तहज्जुद में बैठ के दुआएँ कर रहे होते हैं, सजदों में दुआएँ कर रहे होते हैं, आंसू ऐसे लगता है कि पीछे किसी ने पानी का टैंक लगा दिया हुआ है और दर-दर आंसू अकेले में गिर रहे होते हैं, तो अल्लाह से शिकायतें करते हैं ना, वो जायज़ है, वो तो माँगनी है, वो तो अल्लाह ही है जिसने हमारी सुनी है। लेकिन अल्लाह की शिकायत किसी से नहीं करनी, राइट? ऐसे नहीं करना कि मेरे साथ ही अल्लाह ऐसे करते हैं या मेरे साथ ही ऐसे क्यों है, मतलब लफ्ज़ों को थोड़ा-सा गौर करने वाली बात है। इसके बारे में एक हदीस बड़ी प्यारी थी। अच्छा, नंबर 1 ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ को मोमिन के तक़वे का बताया तो उन्होंने कहा कि मोमिन का तक़वा ये है। अब ये लफ्ज़ जो है ना, कसम से ऐसा लगता है कि एक लफ्ज़ जो है ना, वो मोती में पिरोए हुए जैसे नहीं होते, कि इतनी प्यारी नसीहत है। उन्होंने कहा कि जो नेमत नहीं मिली है, उसके हसूल के लिए अल्लाह पर भरोसा रखे और जो नेमत मिल गई है, उस पर अपने रब से राज़ी रहे और जो नेमत उससे छिन गई है, उससे ले ली जाती है, उस पर अच्छी तरह से सब्र करे और यही सब्र जमील है। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा बयान करते हैं कि जब मैं अपने मोमिन बंदे को किसी मुसीबत में मुब्तला करता हूँ, या अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब मैं अपने बंदे को किसी मुसीबत में मुब्तला करता हूँ और वो अपनी अयादत करने वालों से मेरी शिकायत नहीं करता, राइट, तो मैं उसे कैद से आज़ाद कर देता हूँ। कैद कौन सी है? बीमारी की कैद से आज़ाद कर देता हूँ और मैं उसका गोश्त पहले गोश्त से बेहतर बना देता हूँ, मतलब उसको सेहत तंदुरुस्ती अता कर देता हूँ। उसका खून पहले खून से बेहतर कर देता हूँ और असर-ए-नौ उसके अमल शुरू कर देता हूँ, मतलब पहले पूरे गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। अगर मैं बीमार हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कोई अयादत के लिए आता है, तो हमने क्या कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये याद कर ले बस। हर को अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हो, अल्लाह का शुक्र है। बस दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये वाले लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। और अगर कोई आता है किसी भी तरह से, तो कोई शिकायत अल्लाह के लिए नहीं करनी है, ठीक है? अच्छा, एक बहुत प्यारी हदीस है, ये मुझे इतनी प्यारी लगती है जिसकी कहानी कि मैं इसको बार-बार वैसे देखती हूँ कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को 2 कतरे बड़े पसंद हैं। नंबर 1 ये कि पहला कतरा खून का वो जो अल्लाह की राह में बह जाए, मतलब वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बह जाए, और दूसरा कतरा आंसू का कतरा है जो आधी रात को अल्लाह की खशियत में गिर जाए। अल्लाह को बड़ा पसंद है। और वो पहला घूंट, कहते हैं कि 2 कतरे और 2 घूंट अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद है। कतरे तो हमने देख लिया ना, एक वो खून का कतरा जो पहला गिरता है और दूसरा कौन सा कतरा था? जो आंसू का कतरा। और माँओं के लिए तो ये इतनी प्यारी हदीस है कि हमारे तो कतरे
गिरते ही जाते हैं। तो आप सोचिए, हमने पहले पढ़ा था ना कि वो कतरा आँखों से जो खशियत इलाही से गिरता है ना आँख से, वो ज़मीन पे भी नहीं गिरने देते, फरिश्ते वहाँ से उसको थाम लेते हैं और उस चेहरे को अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम की आग नहीं छुएगी जिस पे वो कतरा लगा होता है। तो सहाबा का मैंने पढ़ा था और बाज़ जो औलिया थे और इस तरह से वो कहा करते थे कि वो जो आंसू गिरता था ना, तो वो उसी को मल देते थे, अपने मुँह पे, हाथों पे भी मल देते थे और हर जगह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे तो सच्चे हैं। और अब पहला घूंट सब्र का जो सख्त तकलीफ में इंसान बर्दाश्त करता है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को बड़ा पसंद है। और दूसरा घूंट गुस्से का, जो कोई शख्स गुस्से को बर्दाश्त करके पी लेता है, गुस्सा बर्दाश्त करना भी बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक और इब्न माजा की हदीस है कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अजर वाला वो घूंट है जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए गुस्से के वक्त वो पी जाता है। तो जब गुस्सा आए ना, तो आपने फौरन अपने ज़हन में एक क्वेश्चन लाना है कि मेरे अल्लाह को ये पहला जो सब्र है ना, पहला गुस्सा बर्दाश्त करना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है, मैं अल्लाह के लिए चुप हो जाती हूँ। तो आप सोचें कितना बड़ा अजर मिलने वाला है। अच्छा जी, और एक और हदीस बड़ी प्यारी थी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि सदके को मख्फी रखना और मसाइब और बीमारियों को छुपाना नेकी के खजानों में से एक खजाना है। जिसने अपनी परेशानी का इजहार किया उसने सब्र ना किया। अब कई दफा होता है ना कि हम सोचते हैं कि क्या है, अब दुख सुख फिर क्या करें, तो ना करें तो किससे बात करें। तो बस ये सोच लें कि जो करने वाली ज़ात है ना, बस उसी के आगे चले जाओ। करनी तो उसने, हमने ये पढ़ा था ना पहले भी, आई डोंट नो कहाँ कौन से पारे में था कि जब भी कभी कोई मतलब कोई अगर आप पे जुल्म करता है, अब तो डेफिनेटली आप उसको, जालिम की बात है, आपकी पे जुल्म हुआ है, तो उसको बताओ जिसने इसका हल करना है। हर एक जगह पे बैठ के जिक्र ना करो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है ना, दूसरों को कसम से फर्क कोई नहीं पड़ता। होता क्या है कि उनको एक स्टोरी मिल जाती है, वो जैसे एक बंदा उठ के जाता है, वो अगले को अब बताता है, जो भी उसका बेस्ट फ्रेंड होता है या फैमिली में होता है, कि तुम्हें पता है फलां के घर में ये बात हुई थी, हाय तुझे पता है उसके साथ ये हुआ था। तो उसको बताओ ना, जो फिर किसी को नहीं बताएगा, जिसने इसको हल करना है। ये चीज़ें अगर हमारे ज़ात के अंदर आ जाती हैं, ये चीज़ों की हमें समझ आ जाती है ना, तो बड़ी प्यारी ज़िंदगी हो जाती है। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अच्छा 54 हो गए, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, असल्लाहु, कि उम्मीद है कि अल्लाह अयतियनी बिहिम, के ले आए मेरे पास उन सबको जमिया, सबके सबको। अब यहाँ पे देखिए कि उनकी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम किस ज़माने के गुम हुए हैं, और अब ना सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब छोटा बेटा भी, अब उस ज़माने में कोई फ़ोन तो थे नहीं कि पता होता कि अच्छा बेटा वहीं हो, खैर खैरियत से हो या क्या है। और फिर अपना जो बड़ा बेटा है यहूदा, वो भी अब वहीं रह गया, किस हाल में है, कैसे है। और अब बाप क्या कह रहे हैं कि मुमकिन है असल्लाहु, के अल्लाह इन सारे को सारों को वापस ले आए। उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा उन्होंने। इन्नहु, बेशक वो, हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो बड़ा इल्म वाला और खूब जानने वाला है। फिर आयत नंबर 84 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वतवल्ला अन्हुम, और उसने आराम से, देखे कोई दुहाई नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं कि किधर छोड़ आए हो उनको, क्या किया तुमने, आराम से दूसरी तरफ मुख किया। वक़ाला, कहा, या असफ़ा अला यूसुफ, हाय अफसोस यूसुफ पर। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि या असफ़ा यूसुफ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हम कहते हैं ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये हमारी उम्मत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कलमात अता किए। अगर ये हज़रत यकूब के ज़माने में होते, क्योंकि वो भी तो नबी थे ना, तो यकूब अलैहिस्सलाम या असफ़ा अला यूसुफ के बजाय ला इलाहा इल्ला सॉरी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते। तो अब उन्होंने कहा यूसुफ पर अफसोस, मतलब उनको याद कर रहे हैं ना। वबयद्दत आइनाहु मिनल हुज़्न व हुवा कज़ीम, कि उनकी आंखें जो हैं वो सफ़ेद हो गई गम की वजह से, और वो गम से भरे हुए थे। अब देखिए कि गम क्या क्या इंटेंसिटी, आप देखें कि उनकी आंखें, मतलब कहते हैं ना कि रो रो के आंखें अंधी हो गई, ये हाल उनका था। और इतना बड़ी आजमाइश औलाद की तरफ से हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को, कि हमारी फिर हर आजमाइश हमें कम लगेगी जब हम इनको याद करेंगे कि इतने साल किस तरह से इनका सब्र जमील। उस वक़्त भी यकूब अलैहिस्सलाम ने यही लफ्ज़ कहे थे
کہ तुम्हें तुम्हारे नफ्स ने खूबसूरत करके दिखा दिया, जो तुम गलत काम करके आए थे, मैं इस पे सब्र करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ। अब देखिए, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क़ालू कहा, किन्होंने? बेटों ने कहा, तल्लाही अल्लाह की कसम, तफ्ताऊ तज़कुरु यूसुफ़ा, कि आप हमेशा ही याद करते रहेंगे यूसुफ को, हत्ता तकूना हरदन, यहाँ तक कि आप बीमार हो जाए, औ तकूना मिनल हालिकीन, या फिर आप हलाक होने वालों में से हो जाए। इनको तो पता था ये क्या करके आए, है ना? इसके बावजूद भी बाप को क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर। और अब आयत नंबर 86 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क़ाला, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपनी शिकायत अल्लाह के सामने, अपनी बेकरारी और गम को अल्लाह की तरफ शिकायत करता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा कि शिकायत नहीं करनी है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं, दूसरों से नहीं शिकायत कर रहे, अल्लाह की शिकायत नहीं कर रहे हैं। तो इतनी प्यारी दुआ है कि अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह, जो कुछ भी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये मेरे साथ जो कुछ भी है, तू ही जानता है कि मैं किस हुज़न में हूँ, मैं किस गम में हूँ। मैं अपना सारा गम तेरे आगे पेश करता हूँ। व आलमु मिनल्लाह, और मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते हो। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि ख्वाब की ताबीर हो के रहने वाली है, इसलिए उनको एक उम्मीद भी थी कि ये सारा कुछ तो जहां पे भी हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। तो अब यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मैं आपको, चले मेरा ख्याल है अभी कितना रह गया, मैं ये देख रही हूँ 58 है, हाँ जी, कि मैं जानता हूँ कि जो व आलमू, और मैं जानता हूँ अल्लाह से जो तुम नहीं जानते। और फिर कहा, फिर क्या कहा, या बुनैया, ए मेरे बच्चों, इज़हबू, के जाओ, फतहस्ससू, और फिर सुराग लगाओ, मिन यूसुफा, यूसुफ का, व अखीही, और उसके भाई का। अब देखिए कि फिर वही बात कि इतना तवक्कल अल्लाह पे, इतना यकीन कि जो बस अल्लाह से लौ लगाई हुई थी ना, तो फिर ये तवक्कल का वो इंटेंसिटी आप देखें कि ये हमारे अंदर होनी चाहिए पैदा करने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस पे मांगे भी तो उसी से ना, क्योंकि हम तो इतने कमजोर हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने देना है। आप मेरे अंदर वो तवक्कल पैदा कर दे कि मैं हर मामले में जिंदगी पे एक ही बात हो कि मेरा अल्लाह करेगा ना, बस ठीक है। मैं उसके आगे अपना सारा दुख रख दिया, अल्लाह के आगे मैंने अपना सारी तकलीफ रख दी, मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दूर करेगा और किसी के हाथ में नहीं है। तकलीफ भी है तो डॉक्टर भी अच्छा अल्लाह की ज़ात देगा, दवाई में भी शिफा अल्लाह ही डालेगा, तो फिर उसी के आगे रोए ना जाके। तो अब क्या कह रहे हैं कि तुम जाओ और सुराग लगाओ यूसुफ का और उसके भाइयों का, वला ताइसु, और ना तुम मायूस हो, मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से। अब अपने बच्चों को भी वही तलकीन कर रहे हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, इन्नहु, बेशक वो, ला याइसु, नहीं मायूस होते, मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से, इल्ला कौमिल काफिरीन, मगर जो काफिर हैं। अब देखिए कि कितनी प्यारी बात यहाँ पे हमें समझ आती है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इतनी प्यारी एक आया मुझे याद जो आ रही है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ये मेरी फेवरेट आया में से है कि अल्लाह की रहमत से, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे के सारे गुनाह, जमीआ का लफ्ज़ जो है ना, ऑनेस्टली लगता है दिल के अंदर ही लिख दो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं, पता नहीं ये कई दफ़ा तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं हम किसी को नहीं बताते, अपनी ज़ात से भी छुपा रहे होते हैं कि या अल्लाह ये उस वक़्त मेरे से गलती हो गई थी, या पाक परवरदिगार ये आप कैसे, मतलब मैं कैसे इसको ठीक करूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी बेशुमार तसल्ली कि जमीआ, सारे के सारे गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देंगे, क्योंकि इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, कि वो तो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। बस एक दफ़ा पलट जाओ, अल्लाह के आगे आ जाओ, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। देखिए ज़िंदगी जो है ना, ये बड़ी प्यारी नेमत है अल्लाह की। जिसको ज़िंदगी की नेमत मिलती है, सबसे कीमती नेमत दुनिया में ना वक्त की नेमत है। जिसको उस वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये मिल जाए ना, कुरान मिल जाए, उसको फिर सारा कुछ मिल जाता है। उस लम्हों में ज़िंदगी में अगर तौबा की तौफीक मिल जाती है तो सब कुछ मिल जाता है। कमाल की जो तौफीक है ये अल्लाह की, कि ज़िंदगी में कैसे कैसे गुनाह करके अल्लाह के आगे हाजिर हो जो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। कितनी तसल्ली है, ज़मीन से आसमान तक के गुनाह ले आओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो भी माफ़ कर देंगे। आमीन सुम आमीन। अब यहाँ तक हम अपनी क्लास रखते हैं, इंशाअल्लाह जी
बहुत 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 प्यारे सबक आगे आ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें तौफीक अता करे कि हम अमल करने वाले बन जाएं, और जब हम अमल करें तो अल्लाह से दुआ मांगे कि या पाक परवरदिगार, अगर आपने हमें तौफीक दी तो हम अमल कर सकेंगे, वरना तो हम बहुत कमज़ोर हैं और शैतान कम वक़्त हमारे साथ लगा हुआ है जो हमें बार बार रास्ते से हटाता है। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला, कितने स्टूडेंट होते हैं जो ये बात कह रहे होते हैं कि हमने क्लासेस ली, फिर छोड़ दी, फिर इतने दूर चले गए, अब प्रॉब्लम्स आ गई, बच्चे ये वो। तौफीक मांगे अल्लाह से, बार बार मांगे अल्लाह से, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना, खेल और तमाशा है। ऑनेस्टली जब कुरान ज़िंदगियों में खुलते हैं तो एहसास होता है कि वाकई खेल तमाशा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सब पे अपनी रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन।